ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕਮਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਾਦ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਫੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਦ ਪੁੱਟਣਾ, ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਮਾਦ ਪੁੱਟਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 25 ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2-3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਉਹ 2-3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਗੰਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਦੇ ਗੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰੀ ਬੰਨੀ। ਉਹ ਟਾਪ ਦੇ ਗੰਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਲੈ ਆਣੇ। ਉਹ ਗੰਨੇ ਮੈਂ ਜਨਾਲੀ 2-3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈ ਕੇ 50-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੰਡੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੰਡੇਰੀ ਇਤਨੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਕਿ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਮਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਗੇ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਖੀਰੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮਕਸਦ ਕਿ ਮੈਂ ਧੋਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਕਰਾਚੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਰਾਚੀ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰਾਚੀ, ਕੰਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਕਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ, ਬਲਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ, तो शायद 17-18 साल हो गई होगी। लेकिन मैं दोस्तों जरा ना उन्होंने मैनू कराची इत्थे मैं अपनी जिंदगी का सब तो लंबा सफ़र जरा ना ट्रेन का उन्होंने नाल कीता कि मैं कराची बैठा सी ते पिंडी आके उतरिया सी। उन्होंने मैनू पहली दफ़ा अगले दिन मरीज़ की सैर कराई, अपने ड्राइवर को भेज के, गड्डी भेज के, बड़ा VIP माहौल सब कुछ। उन्होंने मैंने बड़ा मसला, मैं उन्होंने कहा जी तुसीं एवेंडे च जन्नत दोज़ख बनाई। उन्होंने मैंने कहा जी नहीं जी असी ये नहीं, वो आज़ार है अपने अच्छा मज़हब नूं कहंदे सन, मैं अपना थोड़ा जिहा उन्होंने। खैर दोस्तों, उतों इस्लामाबाद रहन तो बाद ना वो जहाज़ से कराची चले गए। मैं उन्होंने कहा कि जी मैं अपने घर जावांगा तो फिर आवांगा। खैर उन्होंने कहा जी ठीक है। मैं आया जिस टाइम इत्थे दीपालपुर, तो कुछ दिन बाद फिर गिलानी साहब ने मैंने बुलाया। मैं कि गिलानी साहब मैं तो नहीं जाना, वो है मसला। उन्होंने मेरा पता लग चुके सी कि ना तो किसी का नुकसान करके आंदा है, लेकिन जो एक बार कह दिंदा ना कि मैं नहीं जाना तो ये नहीं जाता। उन्होंने कहा चल ठीक है नहीं जाना तो ना सी। 10 दिन गुजरे, गिलानी साहब ने उन्हें फिर बुला लिया। उन्होंने कहा हाँ भी रेस्ट हो गई। मैं कहा जी सर, कहते आप कल जरा ना मुल्तान जाना। मैं कहा जी मुल्तान किंदे कोल जाना? मैं कहा जी मेरे रिश्तेदार ने सैयद अजीम, उन्होंने कोल जाना। वो वाबडा विच जरा ना एक्सीडेंट है। मैं कहा ठीक है सर।
मैं दोस्तों ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੀਕਨ ਇੱਕ ਸਫ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਫ਼ਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਮਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲਓ 17-18 ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਸੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 1982 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਆ ਵਾਂ। 82 'ਚ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। 1998 'ਚ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? प्यार मोहब्बत ऐसी ऐसी दिन गुजरे, हर दिन एक नवी कहानी सी। दोस्तों मेरा नाम नज़ीर अहमद है, लेकिन मैनू उस घर चो एक होर नाम मिला, अमीन। उन्होंने दे सैयद फैमिली सारे लोग मैंने अमीन सदे। सैयद फैमिली वो कड़ी जो मेरे अजीम साहब है ना, एक दिन मैंने कहन लगे कि अमीन बड़े गुस्से वाले बंदे सन। उस बार वो डायरैक्टर हो चुके सन, डायरैक्टर बन चुके सन, प्रमोशन हो गए, असी फैसलाबाद आ गए। मैंने कहने लगे अमीन मेरे बाप ते मेरी सिर्फ एक गल सेम है। मैं एक गल तो अपने बाप का बेटा लगना वो ये है कि उन्होंने भी इत्थे पीली ते तदरी होंदी सी ते मेरे भी इत्थे तदरी। मैं अक्सर जाना ना उन्होंने उत्थे बैठनो वेट एन मलम होंदी वो लगांदा सी, क्योंकि उन्होंने तदरी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਸਨ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸਨ फैसलाबाद। इस टाइम ही ना मेरे घर च किते अखबार पई होएगी, शाह फैसल के दौर च ना उन्होंने मरीद ही उन्होंने लैके गए सन अज ते वो इन्नी अच्छी अजान ते इन्नी अच्छी तलावत पढ़ते सन कि शाह फैसल ने ना उन्होंने पाकिस्तान के हज़रत बिलाल का खिताब दिता। वो अखबार तो छपया सी। उस टाइम फैसलाबाद नहीं सी हुंदा, इहदा नाम लैलपुर हुंदा सी। लैलपुर का अखबार अजे तक जिहड़ा ना वो मेरे को मौजूद है। खैर दोस्तों, अच्छी ज़िंदगी गुजरती गई। अमीन अपना ना ही भुल गया। इस साथिकन के दफ्तर भी ना मैनू उन्होंने भर्ती कराता ते मैं तकरीबन ना 40 साल नौकरी करने तो बाद 2022 जरा ना रिटायर होया। उन्होंने दी फौतगी जी ना वो मेरे वास्ते, बाजी की फौतगी ना मेरे वास्ते बड़ा ही दिली समझ लो कोई दुख की गल है। 17 रमज़ान उन्होंने अटैक होया सी।
मैं ही उन्होंने शहरी वक्त मैं तो अजीम साहब जरा ना असीं उन्होंने हस्पताल लैके गए कौमे चले गए 27वें रोज़े जरा ना अल्लाह नूं प्यारे हो गए। खैर उस तो बाद ही मैं उन्होंने नाल रहा। अजीम साहब ने जरा ना नवी शादी कर ली। उस तो बाद वो रिटायर हो गया, मैं अलहदा हो गया, वो अलहदा हो गया। दोस्तों अज भी उन्होंने बच्चियों नाल मेरा तलक है। वो मैनू भाई कहंदियां ने, मैं उन्होंने बाजी कहना। अज भी मैनू मां तरह लगदा। दोस्तों अज उन्होंने पता नहीं किन्ने साल, मैं तो याद ही नहीं किन्ने साल हो गए। मैं उन्होंने याद 27वें रोज़े खत्म ईद होना जो मेरे को हो सकता है। मैं लैन लाट तो है नहीं, लेकिन अल्लाह ने मैनू बहुत कुछ दिता। तनहा दफ्तर तनहा तो हट के मैं जितना अरसा रहा, इस दौरान मेरी शादी भी होगी, मेरे बच्चे भी हो गए। दोस्तों मैं अपने घर खाना नहीं पकाया एक दिन। खाना मेरा उधरों आंदा सी। मैं उन्होंने प्यार ना कभी बाजी कह लेना, कभी अम्मा कह लेना। मैं उन्होंने की खिदमत करनी, लेकिन चलो मैं कुछ किया ही होएगा जिसकी वजह तो मैंने बच्चा तरह समझ। दोस्तों उन्होंने को मुलाजमान का घाटा नहीं सी, ना उन्होंने को गड्डियों का घाटा सी। ईद ते बाकी मुलाजमान उन्होंने कपड़े लैके देने, तो मैंने उन्होंने नाल लैके जाना। मैं गड्डी तो उन्होंने बाजार लैके जाना, तो उन्होंने मैंने कहना कि अमीन जेड़ी दिल करता है जुत्ती। उस वक्त बाटा तो सर्विस एक ब्रांड से, मैं बाटा या सर्विस की जुत्ती जेड़ी दिल करना वो लैने उन्होंने लैके देनी। और वही गल है, वही चीज़ है कि मैं हुण तक तुसीं हिसाब लाओ कि 98 तो लाके 26 तक कितने साल उन्होंने 27 साल तकरीबन 27-28 साल मैं अपनी मां का ख़त्म ही दवाना। उन्होंने नाम तो जो भी होंदा मेरे को कपड़े जुतियाँ सब कुछ करना जितना मेरे को हो सकता। इस हद तक दोस्तों कि जो फौत होए ना, तो क्योंकि एक तो मेरे समझ लो कि हथा च फौत होए। मैं 17वें रोज़े वो इस तरह उन्होंने अटैक होया, तो 27वें रोज़े ना मैं जिस टाइम गया ना, क्योंकि सारे उत्थे बच्चियां आंदियां सन या कोई होंदे सन, मैं गड्डी ते खाना वगैरह लैके गया ना, तो मैं जाके बुलाया। मैंने साहब कहने लगे कि अमीन तू अपने बाजी नवाज दे। मैं देखा दोस्तों जैनमन गल उन्होंने अखां चो ना जिस तरह आंसू आ गए, बोल नहीं सी सकते। उन्होंने मशीना ते लाया सी, मैं भी रो पिया, मैं रो के बाहर आ गया। उस तो बाद दोस्तों असीं उन्होंने फैसलाबाद लै गए। उत्थे मैं उन्होंने कबर बनवाई, कबर के विच मैं उतरिया। उसते ना एक मकसद है कि 4 दीवारी सी, उत्थे 4 कबरां की जगह सी। उस 4 दीवारी जिंदे विच 2 कबरां विच एक उन्होंने ससुर फौज सी, एक वालदा फौज सी, सस साहब फौज सन, उन्होंने कबर सी। तीसरी कबर ये सी। उस कबर च मैं उतरिया तो मैं तुहानूं नहीं दस सकदा मैं उत्थे की नज़ारे देखे, क्योंकि रात दी
खैर दोस्तों मैं उत्थे लेट के बकायदा ते कबर बनवाई। मेरी तबीयत ख़राब हुई गई, अच्छी नहीं सी तबीयत। फिर उन्होंने डॉक्टर ने बुलाया, मैंने चेकअप कराया सब कुछ। इस तरह करके दोस्तों जो फिर मैं उन्होंने छड्डिया ते फिर जरा ना, क्योंकि मैं कि उन्हें छड़ना, वो मैंने छड़ के चले गया, वो अल्लाह को चले गया। अजीम साहब ने नवी शादी कर ली, बच्चियों की शादी हो गई। दोस्तों इत्थे तक जरा ना ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा सफ़र। इस तो बाद जरा ना, अगर तुसी मेरी इस वीडियो को पसंद किया तो मैं जरा ना इसका दूसरा हिस्सा तुहाडे नाल शेयर करांगा। मेरे ज़िंदगी के ना मुख्तलिफ सफ़े ने। समझ लो कि एक मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरा माँ बाप, यानी कि एक ये तो हो गया ना दो सफ़े। एक मेरा माँ बाप, एक मेरे भाई, एक मेरी बीवी, एक मेरी भैन, एक मेरे बाकी रिश्तेदार, एक मेरा दफ्तर। इस तरह समझ लो कि ये 8-10 सफ़े होंगे। मैं तुहानूं उस देखे मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो सैयद फैमिली सी। वो मैनूं क्यों अमीन कहते सन, मैं उन्होंने क्यों इन्ना प्यार करता सी। इन्हां 18-20 सालों के विच दोस्तों सारे एक उम्र का हिस्सा है। फिर मैं जवान सी। मसले अजीम साहब सैयद सर, सही जोड़े जिन्होंने कहते ना कि गुस्से वाले सैयद साहब। मेरा उन्होंने कई दफ़ा झगड़ा झुगड़ा भी हो जाना होंदा रहा, लेकिन एक दफ़ा तो मैं रिटायरमेंट का भी फैसला कर लिया सी, गोल्डन शैड एंड दोस्तों मैंने किन्ने रोकया, मैं क्यों ना उन्होंने को सके आया। उसका मैंने अंदाज़ा बाद होया कि जो उन्होंने मैंने रोकया, काफ़ी बंद ने कहा कि ना जा, उन्होंने रिश्तेदार ने, मैं नहीं मन्या। आखिर बाजी ने मैंने रोकया, जिस तरह रोकया वो नहीं मैं तुहानूं दस रहा। लेकिन दोस्तों उस तो बाद मैंने अंदाज़ा आया कि मैंने उन्होंने क्यों रोकया। कुछ दिन तो बाद ही उन्होंने अटैक होया, वो फौत हो गए, अल्लाह ने प्यारे। तो दोस्तों ऐसी मेरी ज़िंदगी का समझ लो कि पहला सफ़ा कर रहा, दूसरा हुण मैं अगे चल के तुहानूं अगर तुसीं मेरे पसंद किया तो मैं तुहानूं दूसरी कहानी सुनावां अपनी ज़िंदगी। मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।